Hello dear students, the topic for today's lecture conduits for water supply. What are conduits? Conduits are generally large size pipe which are used for carrying water in water supply systems. Generally there are two types of conduits depending upon the type of flow. You must have studied in the previous semester in fluid mechanics that generally there are two types of flow in fluids. The first flow is gravity flow which takes place under atmospheric pressure, and the another one is pressure flow which takes place under some external pressure instead of atmospheric pressure, right? So based on this basis only, the conduits are divided into two types: gravity conduits and pressure conduits. Gravity conduits, the conduits in which the flow takes place under gravity, that is under atmospheric pressure, and pressure conduits, the conduits in which the flow takes place under some external pressure above atmospheric pressure. Normally in water supply system, the flow which occurs is pressure flow, means pipe flow. Now let's discuss the designing of pressure pipes. So generally, four formulas are used for designing of pressure pipes, which are as follows: Darcy-Weisbach formula, Manning's formula, Hazen-Williams formula and modified Hazen-Williams formula. डार्सी फार्मूला में आपका जो होता है हेड लॉस हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, जिसका फॉर्मूला होता है FL/D/V²/2G, जहाँ पे कि आपका F है फ्रिक्शन फैक्टर, L है लेंथ ऑफ द पाइप इन मीटर्स, V है आपकी वेलोसिटी थ्रू द पाइप एंड G इज़ द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड D इज़ द डायमीटर ऑफ द पाइप. देन आपका मैनिंग्स फार्मूला से हेड लॉस कैलकुलेट होता है n²/V²/L डिवाइड बाई R⁴/3, वेयर N इज़ योर मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, R आपकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है जो कि होता है वेटेड एरिया बाय पैरामीटर, राइट, एंड देन L इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप एंड V इज़ द वेलोसिटी थ्रू द पाइप. नेक्स्ट इज़ हेजन्स-विलियम्स फार्मूला. इसके थ्रू हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं पाइप में, जो कि है आपका 0.85 × CH × R⁴ 0.63 × S⁴ यहाँ पे आपका CH है हेजन्स कोफिशिएंट, R इज़ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एंड S जो है आपका स्लोप और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है. Last formula is modified Hazen-Williams formula, which is V = 143.534 CR R⁴ 0.6575 × S⁴ 0.5425. अगेन यहाँ पे CR जो है आपका मॉडिफाइड हेजन्स कोफिशिएंट है एंड R एंड S आपका सेम मीनिंग है. R इज़ द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एंड S इज़ द स्लोप और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. Normally in the designing of pressure conduits, Hazen-Williams formula is used. Now let's discuss the pressure acting on conduits. Normally, three types of pressure acts on conduits. The first one is internal pressure of water, including water hammer pressure. जो भी water pipe के inside flow करता है, that exerts a particular pressure on the pipe material. पाइप के इनसाइड मटेरियल पे वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है एंड वन ऑफ द मेजर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इज वाटर हैमर प्रेशर. दिस विल बी स्टडिंग फर्दर इन द वीडियो. So this pressure which the water exerts from inside to the pipe, that is tensile in nature, right? क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ आपका फोर्स लग रहा है तो that would be tensile in nature. So अगर हमें इसे resist करना है, so we have to use that material which is strong in tension, right? Then the next pressure is pressure due to external loads. जब भी हमारे जो पाइपलाइंस होते हैं मेजरली वो हमारे अंडर द ग्राउंड ले होते हैं, तो अंडर द ग्राउंड ले है तो इस वजह से क्या होता है, एक तो जो उसके ऊपर बैकफिल्ड मटेरियल है उसका प्रेशर, प्लस जो ग्राउंड के ऊपर जो भी पैसेंजर्स या फिर व्हीकल्स जो भी चीज़ मूव कर रही है, दैट विल ऑल्सो एक्सर्ट सम पर्टिकुलर लोड ऑन दैट पाइप. सो उसे ही हम कहते हैं प्रेशर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स. अब इस प्रेशर का नेचर कैसा होगा, दिस विल बी कंप्रेसिव इन नेचर, क्योंकि बाहर से आपके अंदर की ओर प्रेशर लग रहा है तो दैट वुड बी कंप्रेसिव इन नेचर. सो इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दिस वी हैव टू यूज अ मटीरियल विच इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन. थर्ड टाइप ऑफ प्रेशर इज टेम्परेचर स्ट्रेस. जब भी हमारी पाइपलाइंस अबव द ग्राउंड लेड हैं तो टेम्परेचर की वजह से उसमें पर्टिकुलर स्ट्रेस इंड्यूस होंगे जो कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन उसमें कर सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दिस वी हैव टू प्रोवाइड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स थ्रू आउट द एंटायर पाइपलाइन, सो दैट जब भी टेम्परेचर स्ट्रेसेस हो द पाइप कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली एंड द स्ट्रेस हमारे मिनिमाइज हो जाए. सो दीज वर द थ्री टाइप ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन द conduits. Now let's discuss one of the major important pressure, which is the water hammer pressure. Water hammer pressure is a pressure which is caused due to rapid closing of valve. Listen carefully. What happens जब भी हमारी पाइपलाइन में वाटर फ्लो कर रहा है उसका एक पर्टिकुलर मोमेंटम वो अटेन कर लेता है while flowing. एंड सपोज हमने
एक पॉइंट पे वॉल्व सडनली क्लोज कर दिया तो क्या होगा, वॉल्व क्लोज किया इट मीन्स फ्लो स्टॉप हो चुका है। अब क्योंकि हमने फ्लो स्टॉप किया जो कि एक पर्टिकुलर मोमेंटम अटेन कर चुका था, तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले वाटर में थी दैट विल कन्वर्ट इनटू इलास्टिक एनर्जी, राइट, क्योंकि हमने अब फ्लो को स्टॉप कर दिया है। वाइल दिस कन्वर्जन विल टेक प्लेस, काइनेटिक एनर्जी इंटू इलास्टिक एनर्जी जब कन्वर्ट होगी तो जो मोमेंटम पानी में सेटअप था वो सडनली डिसिपेट होगा, एंड जब ये डिसिपेट होगा तो इट विल डिसिपेट एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू दिस कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू इलास्टिक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी एक्सेस रिलीज होगी पानी के अंदर, वो पानी में वेव्स फॉर्म कर देंगी, जो वेव्स आपके रिजर्वॉयर से लेके जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपने वॉल्व क्लोज किया है वहाँ से बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करती रहेंगी, क्योंकि आगे पानी को जगह हमने वे तो दिया नहीं है, वॉल्व क्लोज कर दिया, तो रिजर्वॉयर से पानी निकला और जिस पॉइंट पे हमने अपना वॉल्व क्लोज कर दिया है वहाँ से लेके वो पानी की जो वेव सेटअप हुई हैं वो बैक एंड फोर्थ आपकी ट्रैवल करती रहेंगी विद अ वेरी हाई स्पीड। ये हाई स्पीड किस वजह से होती है, क्योंकि अंदर हाई अमाउंट ऑफ मोमेंटम डिसिपेट हुआ है एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। सो वाइल दीज वाटर वेव्स विल बी ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ इन द पाइप, दे विल एक्सर्ट अ ह्यूज प्रेशर ऑन द पाइपलाइन, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी है और वाटर को आगे फ्लो नहीं मिल रहा है, तो वो उस पर पाइप मटीरियल पे एक ह्यूज प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एंड दिस ह्यूज प्रेशर इज़ ओनली नोन एज वाटर हैमर प्रेशर। एंड ये इसका अमाउंट कभी कभी इसका मैग्नीट्यूड इतना लार्ज हो जाता है कि इट में इवन बर्स्ट द पाइपलाइन। कभी कभी वाटर हैमर प्रेशर इतने लार्ज मैग्नीट्यूड में सेटअप हो जाता है वाटर पाइपलाइन के अंदर कि दैट इट में इवन बर्स्ट इट। सो दिस इज कॉल्ड एज वाटर हैमर प्रेशर। नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस वाटर हैमर प्रेशर? तो जनरली इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो है ईदर वी क्लोज द वॉल्व ग्रेजुअली, तो जिस वॉल्व को हमने सडनली क्लोज किया उसको हम धीरे धीरे क्लोज कर सकते हैं। नाउ धीरे धीरे से हम कैसे समझ सकते हैं कि हम कितना धीरे उसे क्लोज करें? तो इसके लिए एक टर्म होता है क्रिटिकल टाइम। क्रिटिकल टाइम वो टाइम है जिसमें आपका मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर डेवलप होता है पाइप के अंदर। तो अगर हमारा सपोज पाइप का क्रिटिकल टाइम है 3 सेकेंड, तो अगर हमने 2 सेकेंड में पाइप बंद कर दिया इट मीन्स हमने क्रिटिकल टाइम से भी कम टाइम में वॉल्व को बंद किया, इसका मतलब बहुत ही सडन क्लोजर किया है, तो दैट मीन्स उसमें वाटर हैमर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। लेकिन हमने अगर 5 सेकेंड में वॉल्व को क्लोज किया, तो क्योंकि 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम है ये, तो 5 सेकेंड में मीन्स हम उसे धीरे धीरे क्लोज करें, दैट मीन्स वाटर हैमर प्रेशर उतना ज़्यादा उसके अंदर डेवलप नहीं होगा, वो कम अमाउंट में डेवलप होगा। सो वी कैन क्लोज द वॉल्व ग्रेजुअली, और वी कैन यूज़ प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स। प्रेशर रिलीफ वॉल्व क्या होता है आप वॉल्व्स टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड ये तो था आपके स्मॉलर पाइपलाइंस के लिए। एंड अगर आपकी लार्जर पाइपलाइंस है जैसे कि आपके डैम्स में होते हैं, तो वहाँ पे हम सर्ज टैंक्स यूज़ करते हैं। सर्ज टैंक आर स्पेशल स्ट्रक्चर विच आर यूज टू रिड्यूस द water hammer pressure in bigger pipelines. So these were the preventive measures against the water hammer pressure. Now let us know the calculation of water hammer pressure, means what is the magnitude of water hammer pressure developed. So maximum water hammer pressure developed in a pipe is calculated by the formula H max equals to rho W into UP into V naught, जहाँ पे कि आपका जो H max है वो मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर है जो डेवलप होगा कॉन्ड्यूइट में। V naught है velocity of pressure wave travel, V naught है velocity in the pipeline before sudden closure, मतलब वाटर की जो नॉर्मल वेलोसिटी थी पाइपलाइन में जब हमने वॉल्व क्लोज नहीं किया था उससे पहले, V naught वही वेलोसिटी है। रो W इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड आपका जो UP है वो है वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव ट्रैवल, मीन्स जो पानी की वेव सेटअप हुई हैं वाटर पाइप के अंदर वो ही आपका UP है। Now how do we calculate this UP, which is the velocity of pressure wave travel? तो इसके लिए अगेन आपका फॉर्मूला गिवन है which is अंडर रूट EW अपॉन रो W इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस EW इंटू T अपॉन EP इंटू T, जहाँ पे कि आपका EW है बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर जिसकी वैल्यू आपकी रहती है 21 इंटू 10⁵, एंड EP आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पाइप मटीरियल, देन रो W आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड D है आपका डायमीटर ऑफ पाइप इन मीटर, एंड TB है आपकी जो वॉल थिकनेस है पाइप की, दैट ऑल्सो इन मीटर। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द UP विच इज़ वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव ट्रैवल। अब इस फॉर्मूले में जो आपका टर्म है अंडर रूट EW अपॉन रो W, दैट इज जनरली द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, जिसकी वैल्यू हमारी जनरली रहती है 1433 मीटर पर सेकेंड। सो इन द फॉर्मूला ऑफ UP यू कैन पुट द डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ दिस अंडर रूट EW अपॉन रो W विच इज़ 1433 मीटर पर सेकेंड। So in this way we calculate the maximum water hammer pressure, which formula is rho W into UP into V naught, and UP का formula भी आपको given है। Now let us discuss the concept of critical time. As I earlier also told you, the time in which maximum water hammer pressure gets developed in the pipe, that time is called as critical time.
नाउ क्रिटिकल टाइम मतलब वो टाइम है अगर हमने उतने टाइम में वॉल्व को क्लोज कर दिया तो हमारे पाइप में मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट इट? तो सिंपल आपका टाइम का फॉर्मूला जो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो सेम हमारे यहाँ पे भी उसी तरह कैलकुलेट होगा। इसका फॉर्मूला होता है 2s अपॉन यूपी, जहाँ पे कि आपका s क्या है? s है डिस्टेंस ऑफ द वॉल्व फ्रॉम रिजर्वॉयर, बिकॉज ऑब्वियसली जो वेव्स होती है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है? रिजर्वॉयर से लेके उस पॉइंट तक जहाँ पे हमने वॉल्व क्लोज किया है। तो सपोज ये डिस्टेंस s है, मतलब रिजर्वॉयर से लेके वॉल्व तक का डिस्टेंस s है, तो क्योंकि वेव्स बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करती हैं, आगे पीछे ट्रैवल करती रहेंगी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2s डिवाइड बाई यूपी। यूपी जो हमने कैलकुलेट की थी यानी आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी पानी की वेव ट्रैवल कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी हम वही रखेंगे। तो क्रिटिकल टाइम हमारा होता है 2s अपॉन यूपी यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल्व देयर आर 2 केसेस। जितने टाइम में हम वॉल्व को क्लोज करते हैं उसके बेसिस पे 2 केस हमारे बनते हैं। द फर्स्ट वन इज सडन क्लोजर। सडन क्लोजर कब होगा? जब हम क्रिटिकल टाइम से भी कम टाइम में वॉल्व को क्लोज कर देंगे, तो दैट वुड बी सडन क्लोजर। मीन्स क्रिटिकल टाइम से भी कम टाइम में हमने वॉल्व क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब बहुत ही सडनली हमने वॉल्व क्लोज किया है। तो इस केस में जो वाटर हैमर प्रेशर डेवलप होगा पाइप में वो मैक्सिमम होगा, बिकॉज क्रिटिकल टाइम में भी मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर डेवलप होता है। एंड अगर उससे भी कम टाइम में वॉल्व को क्लोज किया तो इसका मतलब वॉल्व हमारा बहुत ही सडनली क्लोज हुआ है एंड दस मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर डेवलप होगा। दूसरा केस है हमारा ग्रेजुअल क्लोजर। जब ये केस तब होता है जब हमारा जो टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल्व है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल टाइम है। मीन्स जब हमने क्रिटिकल टाइम से ज़्यादा टाइम में वॉल्व को क्लोज किया तो इसका मतलब हम ग्रेजुअली क्लोज कर रहे हैं। एंड इस केस में जो वाटर हैमर प्रेशर डेवलप होगा मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर डेवलप नहीं होगा। कितना वाटर हैमर प्रेशर डेवलप होगा? वो होगा pH इक्वल्स टू pH मैक्स इंटू TC/T, जहाँ पे कि हमारा pH मैक्स क्या है? मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से जो पहले हमने पिछली स्लाइड में देखा, दैट इज UP इंटू ρW इंटू V। TC इज़ अवर क्रिटिकल टाइम जो कि हम कैलकुलेट कर लेंगे 2s/UP फॉर्मूला से। एंड T इज़ द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल्व, मतलब कितने टाइम में हमने वॉल्व को क्लोज किया, T वही टाइम है। सो आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन में टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल्व गिवन रहता है। सो फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन द क्रिटिकल टाइम एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकल टाइम आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन में टाइम गिवन है वो उससे अगर कम है तो दैट मीन्स वो सडन क्लोजर का केस है। तो उस केस में अगर वाटर हैमर पूछता है तो आपका मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर ही होगा। एंड अगर जो टाइम क्वेश्चन में गिवन है वो क्रिटिकल टाइम से ज़्यादा है तो उस केस में जो अगर आपको पूछा जाएगा वाटर हैमर प्रेशर कितना डेवलप होगा तो वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, दैट इज़ pH इक्वल्स टू pH मैक्स इंटू TC/T। यहाँ पे जो pH मैक्स है ये आपका मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर है जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट करना सीखा है। दिस वॉज ऑल अबाउट वाटर हैमर प्रेशर। थैंक यू।